Jai Hind all of you. Students, how are you? I hope you all are doing well. So today we start with our new chapter, that is states of matter. In previous chapter we have studied the property of the particle of matter. We have studied the property of particle of matter, and that properties are the ionization energy, the atomic sizes, then structures, their bonding. Fine. So in this chapter we are going to study about the bulk property. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Bulk properties of matter. Now what I mean what bulk property, it means that if I want to boil a water, it is not possible for me to boil a single drop of water, so I have to take a water in bulk. Fine. So that is the bulk property of water. Fine. अब जो bulk properties हैं, normally for example if I say that water exists in three states of matter, that is ice, liquid and therefore that is the gaseous phase. ठीक है, this is the existence of water. So if I ask, is in these three states of matter the chemical composition of water is changed? Is the chemical composition of water is changed? Now this is my question. So is there any change in their chemical composition? No, there will be no change, because in all the water remain H2O. The masses are fixed, or you can say simple ratio of their masses. Right? That is the law of definite proportion. So there is no any change in their chemical composition. But we can say now these are the physical states. ये क्या है? सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स, जिनका केमिकल से कोई लेना देना नहीं है, केमिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है. तो अब फिजिकल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी फिजिकल स्टेट चेंज होने से केमिकल कंपोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट फिजिकल स्टेट्स चेंज होने पे देयर इज इफेक्ट ऑन द केमिकल रिएक्शन रेट, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल फास्ट हो, स्लो हो, आईसी स्टेट में या सॉलिड स्टेट में कैसा होता है. ठीक है, सॉलिड स्टेट में वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में उसका रिएक्शन कैसा होगा, गैसियस में कैसा होगा. ऑब्वियस है तीनों में इसलिए डिफ्रेंशिएट करेगा क्योंकि तीनों में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, उनके बीच में एग्जिस्ट करने वाली फोर्सेस जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी यू कैन से जब फिजिकल स्टेट्स चेंज होती है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होता है, बट देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. राइट, दिस इज अबाउट द इन दिस चैप्टर. Now if I said I said that there is the forces change. So what type of forces exist between these three type of matters? इनमें कैसी forces exist करती हैं? तो हमने अभी तक पढ़ा है bonds के बारे में. There are covalent and ionic bonds. ठीक, हमने उन bonds के बारे में पढ़ा है और वो bonds कैसे formed होते हैं, either by sharing of electrons or by losing or gaining of electrons. Right? ये हमारे कौन से बॉन्ड्स हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक. नेमली हम आयनिक बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे क्योंकि देयर आर द प्रेजेंस ऑफ आयंस. तो आयंस के बीच में जो आयनिक डिफ्रेंशिएशन होगा उसके बेसिस पे हम उनको तो शेयरिंग आयनिक उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स में कंसिडर करेंगे. बट देयर आर सम फोर्सेस, द फोर्सेस इज नोन एज intermolecular forces. Now what are these type of forces? हमने पहले भी शायद आपने पहले भी किसी क्लास में इसका नाम सुना हो, that force of attraction, the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of repulsion are weak. तो गैसेस में intermolecular force of attraction कम होती है, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती है. So what is the intermolecular forces? So intermolecular forces, क्योंकि वो तीनों स्टेट्स को क्या कर देती हैं, on the behalf of this force, three states of matter get differentiate. Fine. अब intermolecular forces होती क्या हैं? So intermolecular forces are those forces, or you can say they are the
इंटरेक्टिव फोर्सेस। इंटरेक्टिव मीन्स कि जब मॉलिक्यूल्स और एटम के अंदर जो इंटरेक्शन होगा, जो फोर्सेस उनमें एग्जिस्ट करेगी, उनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर forces. Fine. So I said that these are the interactive forces between atom and molecules. Fine. These are the interactive forces between atom and molecules. Then these forces may be attractive एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। रिपल्सिव मीन्स रिपल्सिव, राइट? सो अट्रैक्टिव मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सिव मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? अब ये जो फोर्सेस हैं जिसे हम इंटरेक्टिव फोर्सेस बोल रहे हैं, ये इंटरेक्टिव फोर्सेस को हम वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। इन्हीं फोर्सेस को हम बोलते हैं वैन वाल फोर्सेस। Why they are known as the van der Waal forces? Because they invented by the Johannes van der Waal. Fine. इसने इसको क्या करा था? इन फोर्सेस को स्टडी करा था। So on the name of the scientist, these forces are named, that is the van der Waal forces, and these forces are very weak forces. Van der Waal forces are weak, ये बहुत वीक होती हैं, ठीक है? Then हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस फोर्स से क्या होगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और उसमें होते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन अलॉन्ग विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है। तो इसकी भी बॉन्ड, यानी कि इनकी एनर्जीज के बिहाफ पे इसकी जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, दैट इज 200 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है? इसकी जो एनर्जी है 40 से 80 किलो जूल्स के बीच में होती है, और इसकी जो एनर्जी दैट इज 8 किलो जूल पर मोल। सो आप एनर्जी से ही रियलाइज कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दीज बॉन्ड्स हैव। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी लेवल, van der Waal forces are very very weak forces. They are only the forces. कब वर्क करेंगी? जब मॉलिक्यूल दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। अगर मॉलिक्यूल दूसरे से दूर दूर है तो ये फोर्सेस वर्क ही नहीं करेंगी। इट ओनली कम इनटू प्ले व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ाई है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, और इसमें कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद द यू कैन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और एक मॉलिक्यूल M1 दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा। सो ये जो बॉन्ड है ये भी आपस अपने में क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन जब मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी, उन फोर्सेस को हम इन van der Waal फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे, बट द फोर्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉन्डिंग, ठीक? सो this is how we can you can say differentiate the three forces of the basis of their energy, ठीक है? सो इन्हीं को पढ़ने के लिए, इन्हीं इंटरेक्टिव फोर्सेस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करती हैं, तो वही हमने क्या है इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। नाउ इंटरेक्टिव फोर्सेस आर फर्दर ऑफ टाइप। फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप इसको इसी से, यहीं से यू कैन राइट इट ऑन द राइट इट एज अ नोट्स, ठीक है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन देयर इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, देन देयर इज आयन इंड्यूस्ड dipole interaction,
Then we have studied about the dipole induced dipole interaction. Fine. So, and I think the last one is instantaneous dipole induced dipole interaction. These are the types of attractive forces या फिर intermolecular forces. So I'm not going to send the separate note of these topic. You can note down from here. Fine. So there are the 5 types. Now we discuss each type one by one. So first is your dipole interaction. As I already told you that when we talk about the hydrogen bonding, so dipole interaction, you can say hydrogen bonding is a type of a dipole interaction, but it is not exactly the dipole interaction. यानी कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हैं, लेकिन ये आप कह सकते हो कि उसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बट डिफ्रेंशिएट क्या आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. ठीक है, ये तो हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट इज़ द क्लोरीन और कार्बन. ठीक है, तो इनके साथ जब बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एक स्पेसिफिक टाइप की क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग. राइट. तो डाइपोल अगर इंट्रैक्शन पढ़ रहे तो ऐसे बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी. हम इन पोलर मॉलिक्यूल में वाटर पढ़ सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में हम HCl की बात कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डाइपोल इंट्रैक्शन का पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है. डाइपोल इंट्रैक्शन मीन्स व्हेन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल. डाइपोल का क्या मतलब है, द मॉलिक्यूल विच हैविंग द पोलैरिटी, जिनके अंदर पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, जो मॉलिक्यूल पोलर बिहेवियर शो करेंगे, दे हैविंग द डाइपोल मूवमेंट. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डाइपोल इंट्रैक्शन होगा. अब डाइपोल इंट्रैक्शन में अगर हम बात करें, दिस इज द HCl. ठीक है, ये HCl का नेगेटिव. अब एक चीज़ और है, हमने अभी पढ़ा कि जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स है, दे आर द बॉन्ड्स विच वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. तो उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कंप्लीट चार्जेस होते हैं, इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं. और ये जो पार्शियल चार्जेस है, इट इज़ लेस देन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ठीक, तो इससे भी कम चार्ज होता है, दैट्स वाई ये थोड़े से वीक होते हैं पार्शियलिटी या पार्शियल नेचर की वजह से. ठीक है, तो अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया आपका HCl का, जो कि पोलर है. जब ये इंटरेक्ट करेगा दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ, अब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो क्या होंगी, आपकी डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस. यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है या हमारे पास अगर HCl लिक्विड की फॉर्म में या गैशियस की फॉर्म में है, तो अगर HCl हमारे पास गैस है, तो हमने एक कंटेनर के अंदर गैस फिल कर दी, तो HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगी वो फोर्सेस कैसी होंगी, डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस. फाइन. सो दैट अब ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं, जब डिस्टेंस जैसे जैसे इनका इंक्रीज करेगा, distance increases, डाइपोल इंट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज. डाइपोल इंट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज. यानी कि जितने मॉलिक्यूल दूर जाते जाएंगे ये फोर्सेस उतनी ही वीक पड़ती जाएंगी. सो या वीक कह लो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है to the distance between two molecules. Distance increasing, forces decreases. Right?
So this is about the dipole-dipole interaction. Right? Next is our ion-dipole interaction. Ion-dipole interaction. Ion-dipole interaction means the interaction between ion and polar molecule. यानी कि वो फोर्सेस जो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेंगी उसे क्या बोलते हैं हम, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. अब इस इंटरेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, इट यू कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन पोलर सॉल्वेंट्स. सब्सटेंसेस का मतलब हम कह सकते हैं सॉल्ट्स. अब कुछ सॉल्ट्स क्या हैं, वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं. कुछ सब्सटेंसेस HCl के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी. कुछ सब्सटेंसेस जैसे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास HCl भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी पोलैरिटी शो करेगा. तो इसमें भी क्या है, आप कह सकते हो कि सॉल्ट्स इसमें अंदर डिज़ोल्व हो जाती है. सॉल्ट्स कौन सी, केमिकल सॉल्ट्स, राइट. लेकिन कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जैसे CCl4 जो है उसके अंदर क्या होंगी, सब्सटेंसेस या सॉल्ट्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती है. क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पोलर. तो नॉन पोलर होने की वजह से इनमें सॉल्ट्स इजीली डिज़ोल्व नहीं हो सकती. बेंजीन भी क्या है, हमारा एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसमें भी क्या है, सॉल्ट्स डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं. कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं. तो ये जो पोलैरिटी है ये डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक, अब ये किस तरह से डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस डिज़ोल्व होती है या नहीं होती है. सो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैविंग अ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, तो इनके ऊपर क्या होंगे, चार्जेस होंगे, यानी कि आयनिक सॉल्ट्स हैं. ठीक है, दिस इज अ आयनिक कंपाउंड, राइट. अब ये आयनिक कंपाउंड is soluble in water or not, it is decided by this type of interactive forces. अब ये कैसे डिसाइड करेगी, जैसे हमने NaCl है, ठीक, ये है हमारा सोडियम और ये है क्लोराइड आयन. ठीक, अब जैसे हमने वाटर के अंदर क्या है, हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनको सराउंड करना स्टार्ट कर देंगे लाइक दिस. ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल जब इनको सराउंड करेंगे तो ऑब्वियसली सोडियम इज अ कैटाइन, तो वाटर का जो ऑक्सीजन पार्ट है वो इसके साथ क्या करेगा, इंट्रैक्शन शो करेगा लाइक दिस. ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द सोडियम पार्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है. अब इन पे क्या है, पार्शियल चार्जेस, राइट. ऐसे ही ऑक्सीजन का क्या है, इंट्रैक्शन होगा सोडियम की तरफ, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका इंट्रैक्शन होगा. ठीक, और ऑक्सीजन इज अवे फ्रॉम क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव. तो इस तरह से जब ये क्या करेंगी, जब इंटरेक्टिव फोर्सेस वर्क करेंगी, तो जितनी ज़्यादा ये इंटरेक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, यानी कि आयन और डाइपोल के बीच के जो आयन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी. ये इंटरेक्टिव फोर्सेस रिलीज करती हैं एनर्जी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. इट रिलीजेस द hydration energy. Hydration energy means when we dissolve the salt in or ionic compound in a polar solvent, the amount of energy releases is known as the hydration energy, and this hydration energy decides the solubility of a salts in polar solvents. If more is the hydration energy, it means more is the solubility of a substance. If hydration energy is less, the solubility of substance is also less. And this hydration energy is also decided by the size of cation. ऑब्वियस है, कैटाइन का साइज क्या होता है, या हम साइज ऑफ कैटाइन बोलते हैं या साइज ऑफ आयन बोलते हैं. अब आयंस के अंदर सबसे छोटा साइज किसका होता है, कैटाइंस का. ठीक है, तो हम अगर बात करें कि आयंस में कैटाइंस एंड एनायंस, ठीक, एक पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी आएगा कि जितना कैटाइन छोटा होगा, एनाइन जितना बड़ा होगा, उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, राइट. सो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी आयन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है, और किसके ऊपर, कैटाइन के ऊपर. सो इफ कैटाइन इज स्मॉलर इन साइज,
स्मॉलर साइज का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मैक्सिमम और हाई होता है। तो जितना के टाइम का चार्ज हाई होगा, जितना साइज छोटा होगा, उतनी ये पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा करेगी विद द ऑपोजिट मॉलिक्यूल, उतनी ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, और वो क्या डिसाइड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सो जब हम किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो उनमें जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो कौन सी होंगी, आयन डाइपोल इंटरैक्टिव फोर्सेस, राइट। देन वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ion induced dipole interaction. Ion induced dipole interaction में this is our third type, that is ion induced dipole interaction. Now ion induced dipole interaction what they say says कि अगर हमारे पास कोई आयन है, ठीक, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक। अब ये आयन की प्रेजेंस में दिस आयन चेंज दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू द पोलर, यानी कि पोलैरिटी इंड्यूस की गई है, ऐड की गई है, किसकी हेल्प से, आयन की हेल्प से, ठीक। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल पोलैरिटी को इंड्यूस किया गया है, ऐड किया गया, अदरवाइज मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, नॉन पोलर, लेकिन हमने उसे आयन की हेल्प से उसे कैसा बना दिया है, पोलर मॉलिक्यूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ आयन ब्रोमीन एंड वी हैविंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोजन, नॉन पोलर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा। सो अब यहाँ क्या होगा, इस आयन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इस आयन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पे अट्रैक्ट नहीं, सॉरी, इस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगी। रिपल्सिव फोर्सेस इसलिए एक्ट करेंगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, ठीक। तो अगर हम ये बोलें कि ये भी हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, इसमें नॉर्मली हम ऐसे ही इसे कंसीडर करते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी होगी तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा कि ये जो आयन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के आयन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इट स्टार्ट रिपल्शन, रिपेल करेगा। रिपेल करते ही क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मूव टूवर्ड दिस हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस आयन ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या किया, पोलैरिटी को इंड्यूस किया, इट इंड्यूस द पोलैरिटी। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ जो फोर्सेस, इस टाइप की इंट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी कि आयन ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर दी, इंट्रैक्टिव फोर्सेस की हेल्प से क्या कर दिया, इसने उसको पोलर बना दिया, ठीक। अब हमने पढ़ा था कि जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रही है दैट इज द रिपल्सिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस, राइट। देन आफ्टर दिस